Hello everyone and welcome to our employability skill series of standard 10th. In today's video we are going to dive into most important skill you will need in your career and daily life, and that is your communication skill. So I'll try to complete that session in a quick time or in less time. So let us see. The first topic is your communication skills, and the sessions are your seven, in which session number 1, 2, 3, 4 and 5 are important. 6 और 7 से क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते हैं जनरली. 1, 2, 3, 4 and 5th सेशन में से क्वेश्चंस आते हैं. दिस लेसन covers your 2 marks question, and total employability skill will cover your 10 marks. So let us start page by page. I'll explain what is important and how you are going to prepare for your examination. So in this communication skill unit number 1, the first page, the most important thing is the word communication. The word communication comes from Latin word, and which means your communicare means to share. So from this page we can say the word communication word comes from Latin word communicare, and which means to share. Let us go to the next page. Okay, so next page is in this page the important thing is your communication has three important parts. Communication has three important parts. What are that three important parts? One is your transmitting, and who transmits the information? Sender transmits the information. Then the listening part comes under your receiver. So one is your transmitting, which is sender, second is your listening, which is receiver, and third is again feedback by your receiver. So these are the three important parts of your communication, and then one example is given which is not important. Let us go to the next page. Yes, in this page two things are explained by the figure. One is your communication process, and second is your elements of communication. One is your communication process, second is your elements of communication. So if we talk about communication process, so one is your messenger or your sender, then the next will be your recipient or your receiver. Then the sender, what happened? Sender code the message. Sender sends the message into the channel in the form of your speaking, writing, graphics, video, etc. And then the receiver decode it, understand that, and give some feedback to the messenger. So that is your communication process. And if we talk about elements of communication, so 5 elements of communication are there. We will see it in the next page. Yes. So these are the 5 elements of communication in this cycle. See, sender, number 1 is your sender, number 2 is your message, number 2 is your message, okay, number 3 is your number 2 is your message, number 3 is your channel, number 4 is your receiver, number 5 is your feedback. So 5 elements of communication. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी अगर आता है आपको तो 5 elements of communication. One is your sender who sends the message. See, sender क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा. तो second will be your message. Now जो मैसेज सेंड करेगा that will be going through your channel, means the medium for that transfer of message. Then the receiver means the person who receives the message, and after receiving the message the person gives you some type of feedback. So these are the 5 elements of your communication. Okay, then here it is given. Okay, now methods of communication में examples are given there, like your face to face, that is your informal communication. Email is in the form of your written communication. Okay, and then your notices and poster for your mass communication. Then your business meetings,
Next page. Other methods, like your various methods like social networking, message, phone calls, communication, newsletters, blog, and etc. Okay. Now, how to choose the right method? So it depends on your target audience, cost, kind of information, and urgency. Now, after this, now in this page, questions are given, multiple question answers are given here. First is you read the questions carefully and circle the letters A, B, C, D that best answers the question. Note there can be more than one correct आंसर, वन करेक्ट चॉइस, ऐसा बोर्ड में भी कभी कभी आता है. तो देयर कैन बी मोर देन वन आंसर और वन चॉइस. नाउ हियर which of the following is not an element, not an element, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, not an element of communication within the communication process cycle. So we have seen so we have seen channel is there, receiver is there, sender is there, but time is not there. So the correct answer is your here time. Okay. The next question, you need to apply leave at work. Which method of communication will you use? So if you want to apply leave, naturally you are not going to publish a poster, newsletter or blog, you are going to send email. By which action can sender send their message? Sender send their messages. ओके तो यहाँ पर जो बुक का आंसर है, वैसे तो एक्शन के लिए हम जेस्चर भी बोल सकते हैं, देन आपका ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है आपका बुक में, दैट इज योर रीडिंग, बट इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो. ओके, देन द नेक्स्ट पेज. Yes. Now we are on session 2 and session 2 is your verbal communication. Actually in your book and anywhere there are three types of communication. One is your verbal communication, second is your inverbal communication, non-verbal communication, and the third is your visual communication. Okay, now if we talk about the verbal communication, so verbal means what? Verbal means your which includes your sound, which includes your sound, words, language and speech. Okay, which includes your, if you talk about this, so which includes your sound, words, language and speech. So this is your verbal communication. यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो वन इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स योर वन टू वन कम्युनिकेशन. Written communication, it also comes under your verbal because you are going to use word in your writing form. Okay, then the small group communication example, small group communication का example है press conference, board meetings, team meetings. So this is your small group communication. Then the next page. Okay. Okay, then your public communication. Okay, so public communication my example is your election campaign, then your public speeches by your dignitaries. what are the advantages of verbal communication, ये क्वेश्चन आता है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका easiest mode of communication is your verbal communication, easiest mode, and your keep changing the interaction as per the other person's response. ठीक है, तो दैट इज योर एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. डिसएडवांटेज में हम बोलेंगे तो समटाइम्स द वर्ड्स आर कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. words can be your confusing or difficult to understand. Then the question comes mastering verbal communication. ये कोई केस स्टडी के बेस पर आ सकता है. हाउ टू इम्प्रूव दैट वर्बल कम्युनिकेशन, कोई भी एक केस स्टडी दी होगी कि दैट पर्सन इज हैविंग अ लेस कॉन्फिडेंस, और हाउ टू
master verbal communication. So what you have to write? You have to write these 3 points. One is your think before you speak, concise and clear, that is your 7 C's of communication में से ही इन्होंने 2 लिया हुआ है. Then confidence and body language. So you have to write about these things. Think before you speak, how to mastering verbal communication के अंदर में आएगा. थिंक बिफोर यू स्पीक, बार बार 2-3 बार अगर आप रिपीट कर लेंगे. थिंक बिफोर यू स्पीक, कंसाइज एंड क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, तो दैट इज योर मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन. आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी जो बोर्ड की बुक्स हैं एनसीईआरटी की या जो सीबीएसई के थ्रू पब्लिश्ड बुक्स हैं उन्हीं को पढ़कर जाइए. ठीक है. नेक्स्ट इज योर मल्टीपल क्वेश्चंस में आते हैं. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड सर्कल द लेटर A, B, C, D that best answers the question. Which of the following is an example of oral communication? Oral communication means your जो आप मुंह से बात करके करेंगे. तो न्यूज़पेपर इज नॉट ओरल, लेटर इज नॉट ओरल. यस, नेचुरली द फोन कॉल इज योर ओरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट इन लेस टाइम. Let us see. Okay. Okay. Now, what are the types of the words should be used for verbal communication? हाँ, this is very important question. ये question 2-3 बार बोर्ड में आया है. What are the types of word we should use for verbal communication? तो your answer should be simple. You should not. अब ऐसा भी आता है घुमा फिरा के कि which type of word should not be used in verbal communication. तो what should not be used in verbal communication? Generally acronyms should not be used in your communication. Then your jargons should not be used. jargons क्या होते हैं? आपके जो लीगल वर्ड्स होते हैं या जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, दैट आर योर jargons. तो उनको यूज नहीं करना है. एक्रोनेम्स को यूज नहीं करना है. जनरली टेक्निकल वर्ड्स विच आर नॉट फैमिलियर फॉर एवरीवन उनको भी यूज नहीं करना है. व्हाट शुड बी यूज्ड इन योर वर्बल कम्युनिकेशन? सो सिंपल वर्ड्स should be used in your verbal communication. इसका क्वेश्चन आता है. Then why do we use emails? Why do we use emails? To communicate with many people at the same time, to share document and files, to talk to each other in real time, to keep record of communication. तो इसके ये 2 आंसर दिए हुए हैं बोर्ड की बुक में भी, A and B. ओके, यहाँ पर ये 2 चीजें दी हुई हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें आते हैं हम. द थर्ड सेशन इज, देखो अभी पहला सेशन हो गया आपका व्हाट इज कम्युनिकेशन के बारे में, देन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ द थर्ड सेशन इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स योर exchange of information without using any spoken or written words. ठीक है, ना तो आवाज होगी ना रिटर्न में वर्ड्स होंगे. ठीक है, जस्ट लाइक अ डम शराब गेम. ठीक, आपको क्या करना है? सिर्फ एक्शंस के थ्रू अपने जो भी आपका वर्ड्स हैं उनको एक्शंस के थ्रू बताना है. ओके, तो यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस थ्रू योर एक्सप्रेशन. So that comes under your non-verbal communication. Let us go to the next page. Now this page, yes, this page is important because some facts are given there. और बोर्ड में इसमें objective type questions आ सकते हैं इन facts के ऊपर. The first thing is your 55% of communication. 55% of communication is done using your body movements. That is your face, arms, etc. ठीक है, आधे से ज़्यादा समय में हम हाथ मुंह हिलाकर इशारों से भी बातें कर लेते हैं. 38% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग योर वॉइस, टोन और पॉज. ठीक, 38% जो है वो वॉइस, टोन और पॉजेस से है. एंड ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग योर वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स के थ्रू ओनली 7% है. अब जब ये 7 है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. तो 93% जो है वो नॉन वर्बल है. तो बचा हुआ कितना है आपका? 7% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है.
ओके, इसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ध्यान रखिए 93% नॉन वर्बल एंड 7% इज योर वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर बनाया हुआ है कि नॉन वर्बल एंड विजुअल, ये भी है आपका नॉन वर्बल एंड योर वर्ड्स। तो वर्ड्स के बेस पर सबसे कम कम्युनिकेशन आपका होता है। ठीक है, नाउ कम टू योर नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स में है जैसे कि फर्स्ट है आपका जेस्चर्स। ठीक है, क्या जेस्चर्स हैं? आप किसी को हाय, हेलो, गुड बाय, ठीक है, हैंड्स अप, लाइक, everything comes under your gestures. Then your expression, smiling face, your sad face, all the expression also communicate. Then let us go to the next page. Body language, our postures by which attitude and feelings are communicated. Standing straight, showing your interest. ठीक है, अगर आपको टीचर के पढ़ाने पर नींद ही आने लगी है तो दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। आपको नींद आ रही है तो आप बता सकते हो कि नहीं भाई, हमको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स और योर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है टच। ठीक है, किसी को भी हम इमोशनल, अगर आप टच देना चाहते हैं, कोई रो रहा है उसको हम हाथ से हिलाते हैं उसके ऊपर, या आप किसी से हैंड शेक करते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर योर टच। देन योर स्पेस। ठीक है, स्पेस इज योर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन्स। सो while communicating it depends on the intimacy or the closeness between them. Then your eye contacts पर हम अगर जाएं, आई कॉन्टेक्ट की बात करें तो आई कॉन्टेक्ट क्या करता है आपका? shows that we are paying attention। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। आई कॉन्टेक्ट से क्या होता है? आई कॉन्टेक्ट shows that you are paying attention to the person as opposed to look away। ठीक है, which means the other person feels ignored. Then your para language, साइन लैंग्वेज की हम बात करें अगर, तो पैरा लैंग्वेज योर टोन, योर स्पीड, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब से भी हमें पता लगता है कि what you want to communicate. Okay, the third type of communication is your visual communication. First is your verbal communication in which all the words comes. First is your verbal in which all the words is, then your sound, ये सब आते हैं वर्बल में। देन नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में क्या आता है आपका? नॉन वर्बल में ऑल द एक्सप्रेशंस। ठीक है, then the third is your visual. Third is your visual. Visual means your illustration. Through illustration you are going to explain anything. Very good example is your sign boards. ठीक है, जितने भी आपके रोड के बोर्ड्स रहते हैं, साइन बोर्ड्स रहते हैं, all that comes under your visual communication. See, like your no parking zone, no entry, danger, warning। ठीक है, कभी कभी ये आपका, ये इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप 2-3 पढ़कर जाइए, एटलीस्ट लिखने के लिए इजी होगा। तो ये भी पेज हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम क्या इम्पोर्टेंट थिंग दी हुई है। दैट इज अ क्विक रिवीजन। हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली रिवाइजिंग द थिंग्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द ABCD बेस्ट आंसर्स the question. Which of these is the positive good facial expression? Now you're frowning while concentrating। frowning मतलब आप उसको, आप मुंह पूरा सिकोड़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। maintaining eye contact, smiling continuously, rolling up your eyes। तो your answer is your maintaining eye contact। आप पूरे टाइम हंसते रहेंगे तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। rolling up your eyes, ऐसे आंखें ऊपर चढ़ाकर देख रहे हैं तो भी आपका पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं। पॉजिटिव इज योर मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो? क्या बताता है? प्राइड, क्या हमें गर्व है? नहीं। प्रोफेशनलिज्म? नहीं। कॉन्फिडेंस? यस, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। Which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? ठीक है, नॉट ये याद रखिए, नॉट आता है जनरली तो ये ऐसा पूरा हाईलाइट कर ही देते हैं।
नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब पहले तो हमें देखना होगा कि नॉन वर्बल क्या है। नॉन वर्बल में कीपिंग हैंड्स इन द पॉकेट वाइल टॉकिंग, यस इट्स नॉन वर्बल एंड इट्स नॉट गुड। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नहीं तो फिर से हम पीछे आएंगे। ओके, सिटिंग स्ट्रेट, ये भी अच्छी बात है। टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन, ये भी ठीक है। हमने टिल्ट करके पढ़ना है, इसका मतलब है कि वो आंसर आपका फर्स्ट वाला है। Keeping hands in the pocket while talking. So next is your okay. Which of the following is the statement या following statement is true about the communication? देखो आ गया, फैक्ट वाली बात की थी, याद करो हमने क्या बोला था, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कितना था 93% और वर्बल कितना था आपका 7%। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 50% ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, ये तो सही नहीं है, हमें पता है कितना है 93%। 20% of communication is done using your body movements, arms, ये भी सही नहीं है। 5% is done using your voice, tone, pause, etc. 7% is done using your word, ये तो ठीक दिख रहा है हमें, तो ये आपका आंसर है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। Put a cross against the action below while you're which are the example of bad non-verbal communication। ओके, बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है, उसको हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है। ठीक है, so put cross against the actions which are the example of bad verbal। laughing during the formal communication, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। स्क्रैचिंग हेड, ये भी रॉन्ग हो गया, हमको सिर्फ थोड़ी खुजाते रहना है। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू फ्रेंड, ठीक है। नॉडिंग व्हेन यू अग्री विथ समथिंग, ठीक है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, यॉर्निंग व्हाइल लिसनिंग, गलत हो गया। सिटिंग स्ट्रेट, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, बाइटिंग नेल, ये तो गलत हो गया। फर्म हैंडशेक, ठीक है। क्लेंचिंग जॉ, दांत किटकिटाना। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इंटेंस स्टेयर, हमें कोई घूरना थोड़ी है किसी को, तो दीज आर द सम क्रॉस अगेंस्ट विच बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन देखो यहाँ दिया हुआ है, ड्रॉ एनी 5 कॉमन साइंस यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन व्हाट ईच कन्वे एंड वेयर डिड यू सी। ये 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप एटलीस्ट कोई 5 साइन बोर्ड या 4 साइन बोर्ड और उसका मीनिंग प्रॉपर देख कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, सी अगेन द कम्युनिकेशन साइकिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है आपका, सेंडर, कम्युनिकेट, रिसीवर, फीडबैक, 4 दिए हुए चीजें हैं। सेंडर कम्युनिकेट थ्रू योर चैनल, रिसीवर्स एंड रिसीवर गेट बैक द फीडबैक, ठीक। अब ये यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट है आपका फीडबैक। तो गुड फीडबैक इज ऑलवेज, गुड फीडबैक इज ऑलवेज, गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल, काइंड, ठीक है। 3 वर्ड याद रखना, गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल, काइंड, ठीक है। अब फीडबैक के भी 2 टाइप्स हैं, वन इज योर 3 टाइप्स हैं एक्चुअली। वन इज योर पॉजिटिव फीडबैक, सेकेंड इज योर नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड नो फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक कैसा हुआ, एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का, आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब, I really appreciate you taking that call. Can you please also share the details? ठीक है। नेगेटिव का देखते हैं, you keep forgetting to smile
at the hotel guest when you talk to them. You take really long to reply to emails. Are you always so busy? No feedback, it is also a feedback itself which indicates disagreement. ठीक है, नो फीडबैक भी डिसएग्रीमेंट देता है, नेगेटिव फीडबैक भी डिसएग्रीमेंट देता है, एंड पॉजिटिव फीडबैक इज ऑलवेज गुड. सो फीडबैक इज गिवन बाय क्या, कौन देगा फीडबैक, रिसीवर. फीडबैक कौन देगा, रिसीवर. एंड व्हाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ फीडबैक शुड बी देयर. तो फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड kind. ठीक है, types of feedback, 3 types of feedback: positive, negative and no feedback. Now what is feedback? So moving on to the next. ओके, देखो यहाँ दिया गुड फीडबैक, स्पेसिफिक, टाइमली, पोलाइट. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, why feedback is important. It validates the effective listening. It validates the effective listening. It validates the effective listening. It motivates. ठीक है, it is always there. It boosts learning. It improves performance. तो इसमें से 5 में से आप एटलीस्ट कोई 4 को अच्छे से पढ़ के जाओ. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल ABCD. बेस्ट आंसर. विच ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. Excellent, your work has improved. I noticed your dedication towards the project. You are always doing it in a wrong way. ये तो ठीक नहीं दिख रहा है मुझे, है ना. इट इन अ रॉन्ग वे, ऑल ऑफ दीज. तो ये वाला जो है एक गलत है, बट बोर्ड के आंसर में आपको ऑल ऑफ अबव दिया हुआ है, बट यहाँ पर मुझे ये सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिखा है. क्वेश्चन में बोर्ड में जनरली ऐसा गलत नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. which of these are the example of negative feedback. ठीक है, I hate to tell you this but your drawing skills are poor. You can surely improve your drawing. This is good drawing but you can do better. None of above. This is your negative feedback. ठीक है, which of the following are effective component of good feedback. Effective, detailed and time consuming, direct and honest, specific, opinion based. इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फीडबैक तो आपको पता है स्पेसिफिक. ठीक है, ओके. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक. तो फीडबैक इज योर given by your receiver after receiving the message. It can be a positive feedback, it can be a negative feedback, or it can be your no feedback. ठीक है, that is the way how the receiver understands the message. Okay. Now the session 5 which is your barriers of effective communication. इसको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी, बट इससे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट इसमें है 7 C's of communication. 7 C's of communication. इसको 7 C's of communication को याद करने के लिए भी यहाँ पर इससे नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे फिगर देखकर. नेक्स्ट, ठीक है. Now see the figures given in the book. ठीक है, तो पहले पिक्चर में यहाँ देखो एक झाड़ू दी हुई है, तो उससे आपको झाड़ू देखते ही पता लगना चाहिए झाड़ू क्या क्यों यूज होती है आपकी, फॉर क्लियरिंग द डर्ट. तो फर्स्ट इज योर क्लियर. ठीक है, देन यहाँ देखो आप एक पूरा ऐसा वाह 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 हाथ दिखा रहा है, एकदम परफेक्ट, सिंपल वर्ड्स, बहुत बढ़िया, हमें सब समझ में आ गया. तो सेकेंड इज योर कंसाइज. ठीक है, कंसाइज, कंसाइज होना चाहिए. थर्ड इज योर, यहाँ देखो हथौड़ी से पूरा मजबूत जोड़ ठोक कर रहे हैं, तो दैट इज योर कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट, हथौड़ी है, ईंटें हैं, तो दैट इज योर कॉन्क्रीट. आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, पहले ही झाड़ू देखते ही याद आएगा. फर्स्ट 7 चीज में से पहला इज योर क्लियर, सेकंड इज योर हाथ जो वैसे कर रहा है तो आपका कंसाइज, हाथ आपका वाह वाह का है, कंसाइज. थर्ड इज योर हथौड़ी, ईंटें हैं तो कॉन्क्रीट. फोर्थ इज योर राइट का साइन, एकदम करेक्ट. मुझे तो तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई, तो दैट इज योर करेक्ट. ठीक है, देन
कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ देखो उन्होंने इस फिगर को गियर्स के थ्रू समझाया है, जैसे कि एक गियर को हम घुमाएंगे तो दूसरा अपने आप घूमेगा। तो कोहेरेंट, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू मेन टॉपिक, ठीक, दे आर रिलेटेड टू योर मेन टॉपिक, दैट इज योर कोहेरेंट, ठीक है, रिलेटेड विथ ईच अदर। देन योर कंप्लीट, कंप्लीट मैसेज शुड बी कंप्लीट, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है हमें, कंप्लीट मैसेज को कम्युनिकेट करना है। एंड योर कर्टसी, कर्टियस होना चाहिए, यानी आपका मैसेज रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, एंड योर ऑनेस्ट होना चाहिए। अब आपको ये याद करने के लिए, 7 C's याद करने के लिए आप एक बार आंखें बंद करके देखो, आपको सबसे पहले एक झाड़ू दिखाई देगी, दैट इज योर क्लियर। इसके बाद आपको एक आपका जो वाह वाह करता हुआ हाथ दिखाई देगा, दैट इज योर कंसाइज। थर्ड इज योर, आपको हथौड़ी दिखाई देगी, तो दैट इज योर कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट। हथौड़ी वगैरह से हम क्या बनाते हैं, कॉन्क्रीट। तो वैसे याद रखो कि एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए। देन तीनों चीज़ें मुझे याद आ गई, तो करेक्ट, यस, 3 थिंग्स आई कैन रिमेंबर। इसके बाद वो गियर बॉक्स को याद कर लेना, दैट इज योर कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं बैरियर्स इन योर कम्युनिकेशन। बैरियर्स इन योर कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, ठीक है, क्या क्या आपके जैसे रुकावट के लिए खेल, दूरदर्शन का मुझे याद आ गया, वैसे ही बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक करना है यहाँ। ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, फिजिकल एंड इंटरपर्सनल, ठीक। तो इसको याद करने के लिए, इसको आपको सबको याद ही है वैसे तो, आईपीएल याद है कि नहीं, हाँ, आईपीएल किस में होता है, क्रिकेट में। तो बस ये 4 वर्ड यूज करना कि बैरियर इन कम्युनिकेशन में क्या है आपका, आईपीएल है, विच इज इन योर क्रिकेट। अब आई से क्या है यहाँ पर, इंटरपर्सनल, आई से क्या आया आपका, इंटरपर्सनल बैरियर मीन्स योर वन टू वन, पर्सन टू पर्सन, समटाइम्स we are not comfortable with the person, that is your interpersonal barrier. The second is your physical or your organizational barrier, ठीक है, physical barrier है या organizational barrier है। समटाइम्स योर एनवायरमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, आपको बहुत ही गर्मी लग रही है, आप एकदम बारिश में खड़े हो, आप जो बोलना चाह रहे हो वो भी नहीं बता पा रहे हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड इज योर आई के बाद पी, पी इज योर फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एल इज योर लिंग्विस्टिक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स योर a barrier in your language, and the last cricket, ये सब आईपीएल किसका है, क्रिकेट का है। तो कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर मीन्स योर, suppose your culture is different, you are not understanding the way others are celebrating that festival, that can be a barrier in your communication, ठीक है। आपको कुछ समझ ही नहीं रहा वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बात करोगे, तो दैट आर द 4 बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कैसे याद रखेंगे इसको, आईपीएल, आईपीएल कहाँ है आपका, क्रिकेट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है 2 मार्क्स के लिए। जैसे ही आता है तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने, 4 जो वर्ड्स हैं वो लिखने। वन इज योर इंटरपर्सनल बैरियर विच इज योर वन टू वन, सेकेंड इज योर फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, थर्ड इज योर लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर है, एंड फोर्थ इज योर कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये इसी तरीके से इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप इसको रीड आउट जरूर कर लें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर ए बी सी डी, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। अब आपको पता है लिंग्विस्टिक बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर है, तो क्या नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फाइनेंशियल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो व्हाट इज नॉट देयर, फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, यस, यूजिंग द ट्रांसलेटर्स, यस, नॉन कम्युनिकेटिंग एट ऑल, ये तो नहीं कर सकते, ठीक है, यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, तो ये यहाँ पर 2 चीज़ें हम कर सकते हैं टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। ओके, राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर
you may come across when you move to the new city or new country। ये आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में। न्यू सिटी और न्यू कंट्री में जाने पर आपको दो टाइप के बैरियर्स को हैंडल करना पड़ेगा। वन इज योर लिंग्विस्टिक एंड सेकेंड इज योर कल्चरल, ठीक है। देन योर राइटिंग स्किल्स, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर कर दिए। फिर भी बता देती हूँ, यहाँ कैपिटलाइजेशन कौन से वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए वो लिखा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर टाइटल्स शुड बी कैपिटल। जब भी हम आई यूज़ करेंगे तो कैपिटल है, किसी के नेम्स नाउन्स के लिए कैपिटल है। स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर सेंटेंस शुड बी कैपिटल। व्हाट आर योर पंक्चुएशंस, ठीक है। Punctuations are the symbols which are used in your sentence. That is your full stop, comma, where we can use this comma, question mark कहाँ यूज होना है, exclamatory mark कहाँ यूज होना है, ठीक है। ये सब आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो, जो आपका पेपर हो भी गया है। देन योर एपोस्ट्रोफी, कहाँ हमें एपोस्ट्रोफी यूज करना है, ठीक है। देन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से बेसिक पार्ट आपके, नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। प्रोनाउंस, द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। देन योर एडजेक्टिव्स, ठीक है। देन योर एडजेक्टिव्स मीन्स द वर्ड के बारे में जो बता रहा है। वर्ब्स, दैट इज योर एक्शन वर्ड्स। एडवर्ब्स, जो वो वर्ब की स्पीड या वर्ब के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। सो हियर द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, जो मेन पार्ट थे आपके वो क्या थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएंगे आपके, सपोर्टिंग में आर्टिकल्स, ठीक है। देन योर कंजक्शंस, जॉइनिंग वर्ड्स, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव। मुझे यहाँ अंडरलाइन वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव, तो आप बता सकते हो एडजेक्टिव तो क्या है। रेड ड्रेस एडजेक्टिव है। देन, ठीक है, ये तो मुझे एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक। विच ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। रवि एंड आई गलत है। सलीम इज विजिटिंग, रवि एंड आई गलत हो गया। सलीम इज विजिटिंग इंडिया इन जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल होना चाहिए था। द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, ठीक है। शी इज अराइविंग ऑन मंडे। तो ये क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस तो सही दिख रहा है मुझे। कौन से सेंटेंसेस, टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग, शी इज अराइविंग ऑन मंडे, ओके। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर पंक्चुएटेड करेक्टली। व्हेन इज द पार्टी, गड़बड़ हो गया। आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, एंड अ बनाना फॉर अ ब्रेकफास्ट। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, दिस इज अब्दुल्स नोटबुक, ठीक है। तो ठीक है, बता देंगे हम। नेक्स्ट है इन विच ऑफ दीज, ये आप आराम से कर सकते हैं। इन विच, तो ये सारी चीज़ें जो आपका है ये जनरली ITAI के पेपर में तो नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम क्या है। हाँ, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस जैसे हमारे नॉर्मल रहते हैं वही चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप को देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, verb and the subject in the sentence. The car crashed into a tree. ऑब्जेक्ट क्या है आपका, a tree. verb क्या है, crashed. subject क्या है, the car. Identify the indirect object in the sentence. The band played music for the audience. तो किसके लिए, ऑडियंस के लिए। Which of these is an imperative sentence.
ये वाला है इम्पेरेटिव, ओ नो आई मिस माय फ्लाइट। ओके, सो सब्जेक्टिव में राइट टू सेंटेंसेस क्या दिया हुआ है? हाँ ठीक है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस? हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में ये दिया हुआ है आपका, तो एक्टिव क्या हुआ आपका? ही इज रीडिंग अ बुक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैंने काफ़ी शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश की है। इसमें से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ट्राई टू कवर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो। थैंक यू वेरी मच।